स्पीकर महोदया पधार रही है। Honorable members, a very good evening to all of you. Welcome to the Bal Sansad session, and I hope that this session will be fruitful. We will begin with oath or affirmation of our newly elected member. Secretary General, please. Is Arti Nayak, MP states elected from Chandigarh constituency of Punjab will now take the oath of affirmation. Is Arti Nayak, please? Madam Arti Nayak, do you want to take the oath of affirmation? In which language do you want to take the oath? In Hindi please. Okay, madam, kindly proceed. मैं आरती नायक जो युवा बाल संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिधान करती हूँ, विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Take the oath of affirmation. Miss Arti, please. Miss Prachi, do you want to take the oath of affirmation? In which language do you want to take the affirmation? In English. Okay, madam, kindly proceed. I, Prachi, have been elected a member of lower house of Parliament. Solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and by law establish that I will faithfully discharge the duty which I am about to enter. Mr. Mohit Kumar, MP who stands elected from Jaipur constituency of Rajasthan will now take the oath of affirmation. Mr. Mohit Kumar, please. Sir Mohit Kumar, do you want to take the oath of affirmation? Affirmation please. In which language do you want to take the affirmation? Okay, sir, kindly proceed. I, Mohit, having been elected a member of lower house of Bal Sansad, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Honorable member, as we meet today, it is my duty to inform the House of the sad demise of our former colleague, Srimati Seema Tripathi. She was representing Mangalpur constituency. Before electing in Lok Sabha, she had an illustrious career as a parliamentarian. She was known for her simple lifestyle and humble nature. She had actively participated in historic decisions held in this house. Her contribution will always be remembered by this country. She passed away at New Delhi on 5th March of 2025. Honorable Speaker Madam,
I would like to pay my tribute to Seema Tripathi, whose death is deeply mourned by all. She had been one of the sharpest minds in Indian politics, and during her parliamentary career, she actively participated in all house proceedings and made valuable contributions for the society. She was an active social and political leader. Therefore, the shock of his passing away is regretted. I want to say some words for Seema Tripathi, कि जिनके कार्य करने से प्रसिद्ध हुई हमारी पार्टी, कि जिनके कार्य करने से प्रसिद्ध हुई हमारी पार्टी, ऐसी थी हमारी सीमा त्रिपाठी। धन्यवाद। स्वर्गीय श्रीमती सीमा त्रिपाठी भारतीय सांसदों में बहुत ही प्रतिभाशाली सांसद थी। अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय कार्यकलापों में भाग लेकर उन्होंने संसद का गौरव बढ़ाया। वह एक उत्साही समाज सेविका एवं लोकप्रिय राजनायिका थी, जो अपने सपने और दृढ़ संकल्पों को साकार कर देश को कीर्ति शिखर पर पहुंचाना चाहती थी। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। देश में उनके विकास के योगदानों को याद करते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और साथ ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार के सदस्यों को उनके वियोग का दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। I request the House to stand in silence for a while to express our deep sorrow. Sit down, please. Secretary General, we convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, Madam. Prime Minister to introduce new ministers. Honorable Madam, I have pleasure in introducing to you and through you to the House, my colleagues, the new ministers. Ms. Tanvi, Minister of Coal and Mines. Mr. Jai Rathod, Minister of Jal Shakti. Thanks. Now the question hour begins. Question number 301 by Mr. Govind, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि अगर मुद्रा योजना एवं पीएमजी जैसे कार्यक्रम संभव हैं और लोगों को इसका फायदा हो रहा है, तो आज भी कुछ छोटे व्यवसाय मालिक बैंकों से धन प्राप्त करने में असमर्थ क्यों हैं? धन्यवाद महोदय। Minister of Finance, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बैंकिंग बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ऋण आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाकर ऋण तक पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य योजनाओं ने पहले ही लाखों लोगों की मदद की है, लेकिन हम और अधिक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। Question number 302 by Ms. Lavina, please. Honorable Speaker, Madam, I have a question for Prime Minister. Minister, while your government has made various claims of progress, many people are facing economic hardship, unemployment and inflation. How do you justify the failure to address these fundamental issues while claiming to be focused on development? Thank you, Speaker, Madam. Speaker Madam, I understand the challenges faced by many citizens. Our government is working tirelessly to address these issues through schemes like Make in India, Digital India and Skill India. We are committed to long-term vision of self-reliant India. Thank you, Madam. Any supplementary question? Yes, Ms. Ritu. कि प्रधानमंत्री कर रहे दावे बड़े, कि प्रधानमंत्री कर रहे दावे बड़े, फिर क्यों किसान और मजदूर बेरोजगार खड़े? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि आप इस बढ़ती आलोचना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि आपकी सरकार किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है? कृपया इसका विवरण प्रदान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Prime Minister, please. अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सांसद को बता दूं कि महोदया जी,
हमारी सरकार पीएम किसान और पीएमजीकेवाई जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और हम सामाजिक सुरक्षा जैसे उपायों के माध्यम से किसानों की आजीविका में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यम वर्ग को कर राहत और किफायती आवास जैसे पहलों से भी लाभ मिल रहा है। धन्यवाद महोदया। Question number 303 by Ms. Urvashi. अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से न्याय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत क्या अनुसूचित जनजाति को मुफ्त में से विविध सेवाएं प्रदान की जाती है? यदि ऐसा है तो राज्यभर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या जिन्हें मुफ्त में विविध सहायता प्रदान की गई हो तो कृपया विधि एवं न्याय मंत्री इस पर अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन में विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अंतर्गत पूरे देश में विधिक सेवा कार्य करने को किया गया है। इस अधिनियम के खंड 1 के अनुसार आयगत को दृष्टिगत न रखते हुए अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मुफ्त सहायता पाने का अधिकार है। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान संपूर्ण देश में विधिक सेवा संस्थानों से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का राजवाड़ा अनुकूल रूप से है। इसमें वर्ष 22-23 में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 78,556 है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से 17,704 है, झारखंड में 15,875 है। धन्यवाद महोदया। Question number 304 by Ms. Nikshita. I have a question for Health Minister. Minister, healthcare is one of the vital issue for the public. Yet millions of the citizens, especially in rural areas, still lack access to the basic medical services. Despite of claims to expanding healthcare infrastructure, why are rural healthcare facilities are still so underdeveloped, and what concrete measures are taken to address this? Thank you, Honorable. Honorable Speaker, we acknowledge the challenges in rural health care, but the government has launched several initiatives such as National Health Mission and Ayushman Bharat. Also, construction of several health camps. We are also implementing telemedicine and mobile phone health care to serve underserved areas. But we know that there is more work to be done. Thank you. Question number 305 by Mr. Pankaj. I want to say that whether India's highway runs of standing vertical and gas continues to hold public health care for children and women. If so, the detail thereof and the response of the government thereon. Thank you, Speaker Madam. Minister of Women. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल के नेता को बताना चाहती हूँ कि NFS 5 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेत को NFS 4 की तुलना में सुधार हुआ है। महिलाओं में कम वजन का प्रचलन 18.7% से बढ़कर 22.9% हो गया है। NFS 5 के अनुसार महिलाओं में एनीमिया का प्रतिशत 57% है। धन्यवाद महोदय जी। माननीय जतिन जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जल शक्ति मंत्री क्या सरकार बिहार राज्य की महानंदा, कोसी और गंगा जैसी प्रमुख नदियों के द्वारा होने वाले मृदा कटाव को रोकने के लिए कोई योजना का प्रस्ताव रखती है? यदि ऐसा है तो इसका विवरण प्रदान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय जल शक्ति मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि नदी में तलछट, गड़ाव और आंदोलन के रोके भी संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार की कोशिश जारी है। सन्हा सरकार विशेष रूप से समग्र क्षेत्रों में अपना उच्च मार्गदर्शन और सहायताएं प्रदान करती है। महोदय, सरकार ने यह रिपोर्ट किया है कि वर्ष 2021 में बिहार के कटिहार जिले में 368 गांव और 7.30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। महोदय, बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल में हो रहे उज्जैन ग्रहणों में अधिक वर्षा है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 307 माननीय गोविंद जी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि देश में बढ़ रही भुखमरी का मुख्य कारण क्या है और क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि आज भी लोग भुखमरी से क्यों जूझ रहे हैं? यदि हाँ तो सरकार इसका विवरण प्रदान करें। धन्यवाद महोदया। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्य
को बताना चाहता हूँ कि भुखमरी को दूर करने के लिए सरकार ने कई अथक प्रयास किए हैं। वर्तमान समय में बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भुखमरी को दूर करने के कई अथक प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजना चलाकर बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 308 माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों एवं गांवों में कितने मकान आवंटित कराए गए हैं? कृपया कर इसका पूरा विवरण पूरे सदन को प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्षी सांसद को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत हम लोगों को गृह प्रदान कर सके, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजना के अंतर्गत शहर में जिसके पास रहने के लिए मकान हो उसे हमारी सरकार द्वारा मकान प्रदान किया जाता है। यह योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसके पश्चात शहर में योग्य लाभार्थियों को यह योजना का लाभ होता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह योजना सिर्फ राज्य के बड़े शहर एवं केंद्र शासित प्रदेश में ही लागू किया गया है और आपको इसका विवरण चाहिए तो आप हमारी सरकार द्वारा बनाए गए वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। धन्यवाद महोदय। Any supplementary question? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से ये जानना चाहूंगी कि मंत्री महोदय, सांप्रदायिक अशांति के समय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं? कृपया पूरे सदन को इसका विवरण प्रदान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से विपक्षी सांसद को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम सामाजिक हिंसा के समय लोगों को सुरक्षा दे सके और महोदय हमारा तो लक्ष्य ही यह है कि हम शांति सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 309 माननीय जलील जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके जहाँ संसाधनों की कमी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद को बताना चाहता हूं कि हम शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों को पहचानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है पाठ्यक्रम में सुधार, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। हम शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार, बुनियादी ढांचों को उन्नत कराना और ग्रामीण और शहरी स्कूलों की बीच की खाई को पाटने के लिए डिजिटल शिक्षा का उपयोग पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा की जाए और उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो। कृपया इसका विवरण पूरे सदन को प्रदान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विपक्षी सांसद से बताना चाहता हूँ कि हमारी रक्षा सेनाएं संघर्ष बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है तथा बाल सुरक्षा एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर काम करती है ताकि बच्चों की सुरक्षा और देखभाल प्राप्त हो सके। धन्यवाद। सरकार स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजनाएं बना रही है कि बच्चों को स्वस्थ और जैविक खाद्य पदार्थ मिले। कृपया कृषि मंत्री इसका विवरण प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद सांसद, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसके तहत किसानों को स्थायी और जैविक कृषि पद्धतियों में परिवर्तित करने में मदद दी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि सभी विद्यालयों और बच्चों के लिए स्वस्थ एवं कीटनाशक मुक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। हम जैविक कृषि प्रशिक्षण और सब्सिडी प्रदान करके स्थानीय किसानों को समर्थन देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रश्न 312 माननीय मित्तल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देशभक्ति से पूछना चाहती हूँ कि हाल के वर्षों में भारत के विदेश संबंधों में कई चुनौती आई है। सरकार पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंधों को कैसे मजबूत बनाने की योजनाएं बना रही है, खासकर जब सीमा विवादों को लेकर तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्री कृपया इसके को बुलाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
प्रदेश मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र शांति और स्थिरता को महत्व देता है। हम बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे प्रयासों में क्षेत्रीय भागीदारी को मजबूत करना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक संगठन सक्रिय रूप से निभाना शामिल है। धन्यवाद। माननीय ध्रुवल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि पीएम जीवन योजना के अंतर्गत 2G बायो इथेनॉल प्रोडक्ट स्थापित करने का विवरण पिछले 3 वर्षों महोदया पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत इस योजना में प्रदान एवं उपयोग की गई राशि की जानकारी पूरे सदन को दी जाए। क्या पीएम जीवन योजना के अंतर्गत इन परियोजनाओं से जैविक ईंधन को विकल्प के रूप चुनते हुए पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कितनी कम होगी? क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस पर अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने मार्च 2019 में प्रधानमंत्री जैव ईंधन, वातावरणीय अनुकूलन और फसल अवशेष निवारण की योजना की शुरुआत की है, जिसमें लेग्यूमिनेसिस जैव सामग्री और अन्य नवीकरणीय चारा व पशु आहार का उपयोग करके 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से सहयोग देते हुए इसे बढ़ावा देना है। इस योजना में 2018 से 19 और 2023 से 24 तक कुल आर्थिक व्यय 1969.50 करोड़ हो चुका है। पीएम जीवन योजना प्रारंभ होने के साथ 2G के 8 प्रोजेक्ट के लिए 880 करोड़ रुपए अनुमानित किए जा चुके हैं। 880 करोड़। धन्यवाद। Honorable members, I have to make an announcement on my behalf. Honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency Ms. Monica Floria, Speaker of Romanian Parliament, and Ms. Lily, Member of Chinese Parliament. It is very high-powered delegation. The delegation arrives on 5th March 2025. They are now seated in special pods. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Thank you. Let's continue the question hour debate. Question number 314 by Mr. Rakshesh, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार की सौर ऊर्जा उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? उपरोक्त नीति व राज्य की स्थिति क्या है? वरिष्ठ स्तर पर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? धन्यवाद महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से को बताना चाहता हूँ कि देश में सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सोलर मिशन जनवरी 2010 में आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं शुरू की है, जैसे सोलर पार्क योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम एवं पीएम कुसुम योजना आदि। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 315 माननीय गायत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा की है, लेकिन हम अभी भी अधूरी सड़क परियोजनाएं गड्ढे यातायात दुर्घटनाएं क्यों देखते हैं, खासकर ग्रामीण और कम विकसित क्षेत्रों में? कृपया सड़क में देश का विवरण प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। मिनिस्टर ऑफ रोड एंड हाईवे, प्लीज। सफर की राह आसान नहीं होती, पर हम हर कदम मंजिल की उम्मीद रखते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सड़क की गुणवत्ता के महत्व को समझते हैं। हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना को लागू किया है, जिसका उद्देश्य सड़क और सुरक्षा में सुधार लाना है, खासकर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में। हालांकि सड़क निर्माण एक दीर्घकालिक कार्य का प्रक्रिया है और सुरक्षा में सुधार और दुर्घटना को कम करने के लिए हमारी सरकार मौजूदा सड़कों के रखरखाव को प्राथमिकता देती है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 316 माननीय अंजलि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदिवासी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि
अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद आदिवासी समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगारों के अवसरों तक उचित पहुंच के बिना अत्यधिक गरीबी में क्यों जी रहे हैं? आदिवासी मंत्री कृपया इसका विवरण प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय आदिवासी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनौतियां होने के बावजूद सरकार लक्षित शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए कई पहलों पर काम कर रही है। हालांकि प्रत्येक समुदाय तक पहुंचने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद महोदय। 317 माननीय रितु जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेल मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय, जबकि भारतीय खेलों ने बहुत प्रगति की है, फिर भी एथलीटों को अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं और समर्थन की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में? कृपया इसका विवरण प्रदान करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से संसद के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि अब देश भर में खेल बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए खेलो इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की है एवं एथलीटों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं एवं कोचिंग प्रणाली में सुधार करने। धन्यवाद महोदय। यस मिस दीक्षा। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि एथलीटों को उनके प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं द्वारा वित्तीय सहायता मिले। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार टारगेट कंप्लीट प्रोडक्ट स्कीम के तहत एथलीटों के लिए धन मुहैया कराती है। धन्यवाद। I see this debate is heating up, but unfortunately we are out of time. Let's continue the discussion in the next session. Thank you, Minister, for your insightful contribution today.